Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. Welcome to all the students in classroom training video lecture. I hope you would be fine and you would have prepared all the lecture whether they were delivered by me or Sir Mumtaz. Dear student, as you know that in previous lecture I was talking about a new modal verb which is known as the name of would, and you have already covered the 3 parts or 3 points of the use of would. Right now in this lecture you can learn about the another 3 parts of this modal verb which is known as the name of would. Dear student, in previous lecture I have already elaborated that when you want to do something in future and you are 100% sure, you are going to use will, but when you are not 100% sure, in this case you have to follow would. तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, would को follow करना पड़ता है, because you are not 100% sure to do something in future. And when you are not sure to do something, when you are not sure 100% sure to do something in future, then you are bound to use would in English language. And the other topic, it is known as the name of possibility. It is included in the case of possibility. It means that you are not 100% sure, made possible, made not possible. And here the fourth one is repetition in past. It is an important and very important point which you can understand very well if you are going to focus on this point. Dear student, repetition in past mean, बाज़ का ये होता है कि हम पास्ट के अंदर एक काम को बार बार दोहराते हैं, हम उसको बार बार करते हैं. मिसाल के तौर पे I was a student. Ali was my best friend at school. I was a student, मैं एक स्टूडेंट था. Ali was my best friend at school. अली मेरा स्कूल में सबसे बेहतरीन दोस्त था. Here I am going to repeat some sentences again and again. पहले उर्दू में क्लियर कर दूँ. हम स्कूल इकट्ठे जाया करते थे. ता ते ती के साथ क्या आ रहा है, था, थे, थी. हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, हम इकट्ठे खेला करते थे. अब देखिए रिपीटिशन इन पास्ट, यानी you are going to repeat something in past, या you had repeated something in the past sense. हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, हम इकट्ठे खेला करते थे, हम दूसरे बच्चों को तंग किया करते थे और टीचर्स हमें डांट दिया करते थे. इट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन. ये क्या कहलाती है उर्दू के अंदर, ये क्या हो रही है, रेपिटिशन. एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस into English language you can use would. It is an important point. ये बड़ा नया पॉइंट है आपके लिए. अगर इसको आप समझें कि है, आप ये समझते हैं आज तक कि हमेशा गा के गी के लिए would आता है. नो, it cannot be said. It is not an exact idea. You can use would for repetition. When there is the case of repetition in past, you are allowed to use would. You can make the sentences or translate the sentences with the help of would rather than was, were. आखिर पे था आ रहा है, थी आ रहा है, but it doesn't mean that you are going to make these sentences in past indefinite or past perfect. No, you can construct or make these sentences in a new way which is known as the name of would. आप would से भी इनको बना सकते हैं, because in this case it was रेपिटिशन इन द पास्ट. ये क्या थी, पास्ट के अंदर रेपिटिशन थी. तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ. उर्दू क्या होगी, हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे. वी वुड गो टू स्कूल टुगेदर. देखिए यहाँ पे वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. अच्छा, हम इकट्ठे खेला करते थे. वी वुड प्ले टुगेदर. हम दूसरे तालिब इल्मों को तंग किया करते थे. वी would
bother other student। टीचर्स हमें डांट दिया करते थे, टीचर्स वुड स्कोल्ड अस। टीचर हमें डांट दिया करते थे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये रेपिटिशन है, यानी एक काम बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। एंड व्हेन सम एक्शन और few actions are were repeated again and again in the past, it means it is the case of repetition in past. And when it is the case of repetition in past, then you are going to use would. You are going to make every sentence which is related to repetition with the help of would. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, ये 5 को बाद में 6 को पहले समझाने जा रहा हूँ। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। Here is an important point which should be understood by you. देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ये पहला जुमला रेपिटिशन का नहीं है, ये दूसरा भी रेपिटिशन का नहीं है। अब यहाँ पे देखें, पहले 2 जुमले रेपिटिशन के नहीं हैं। अगर पहला जुमला ही ऐसा केस आ जाए कि रेपिटिशन का हो, इट माइट बी, ऐसा हो भी सकता है कि पहला जुमला ही पास्ट के अंदर किसका हो, रेपिटिशन को। यहाँ पे तो पहला जुमला हमारा रेपिटिशन का नहीं है। देन व्हाट कैन यू डू राइट नाउ? यू आर गोइंग टू यूज टू। आप क्या इस्तेमाल करोगे? यूज टू, यानी सेंस पहला भी वही है, करते थे, ता थे ती के साथ था थे थी। यहाँ पे अब पहला जुमला रेपिटेशन का है, तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रेपिटेशन विद द हेल्प ऑफ वुड। आप वुड के साथ नहीं बना सकते। यू आर गोइंग टू यूज टू। वहाँ पे पहला जुमला नहीं था ना, तो हमने सिंपल लिख दिया। बट हेयर इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द रेपिटिशन इन द पास्ट, and in English language you are not allowed to make first sentence of the repetition with the help of would। पहला जुमला would से बना ही नहीं सकते repetition का। अब नहीं बना सकते, लेकिन आ गया है तो क्या करें? If you have to face this type of case, then you are bound to use to। तो पहला जुमला repetition का आप किससे बनाओगे? use to के साथ बनाओगे। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। Ahmed and Nadeem used to study together। अहमद और नदीम इकट्ठा पढ़ा करते थे। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। यहाँ जिधर जिधर हुई है उधर उधर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दे का इस्तेमाल करेंगे। अहमद और नदीम इकट्ठे पढ़ा करते थे। दे वुड गो टू स्कूल टुगेदर, दे वुड प्ले टुगेदर, दे वुड बोदर अदर स्टूडेंट, टीचर वुड स्कोल्ड। यहाँ पे अस की जगह क्या आ जाएगा? देन। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू रेपिटेशन, एंड व्हेन द फर्स्ट सेंटेंस इज एसोसिएटेड विद रेपिटेशन इन द पास्ट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज वुड इन फर्स्ट सेंटेंस। पहले जुमले में आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यू कैन
utilize from used to another term which is known as the name of used to. Ahmad and Nadeem used to study together. अहमद और नदीम इकट्ठे पढ़ा करते थे. अब सब मिस है, लेकिन नेक्स्ट जुमले यू आर गोइंग टू मेक विद वुड. पहला जुमला अगर रेपिटेशन का है तो आप किससे बनाओगे? यूज्ड के साथ. अगर पहला जुमला रेपिटेशन का नहीं है, जैसे पहले था आई वॉज अ स्टूडेंट, तो पहला जुमला नहीं था. या इधर होता कि अहमद एंड नदीम वर स्टूडेंट, नो नीड टू यूज़ यूज टू और वुड कोई भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू जस्ट you should just write the sentence according to the nature of sentence. अब यहाँ पे पहला जुमला ही एसोसिएटेड है विद किसके साथ? रेपिटेशन के साथ. सो राइट नाउ इन दिस सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज यूज टू. आप किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू गेट हेल्प विद यूज टू. आप यूज टू के साथ मदद करके ये जुमला क्या करेंगे? बनाएंगे. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें. एंड आई एम कमिंग बैक. So I hope you would have taken a screenshot of it, which will be beneficial for you in making notes regarding English language. And I recommend you that you must construct or make or prepare your notes, because when you are going to do this thing, it will be beneficial for your future. And it can become a type of practice for you. And as you know very well that the practice is the main key which can help you a lot in your study. तो ये जब आप notes बनाओगे तो it will be a kind of practice. Now I am moving toward the third one, which is known as the name of would like to plus want. Want क्या है? चाहने के मानों में है. अगर आप किसी चीज़ की चाहत का इज़हार कर रहे हैं, वहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ विल, तो आप विल का इस्तेमाल नहीं करोगे, वुड का इस्तेमाल करोगे. मिसाल के तौर पे आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट, वो चाय पीना पसंद करेगा. यहाँ पे गा का सेंस है ही वुड लाइक टू टेक टी, या आप यहाँ पे हैव टी भी कर सकते हैं. ब्रिटिश टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बट इन अमेरिकन इंग्लिश यू कैन यूज़ हैव. आप अमेरिकन इंग्लिश में क्या है यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यू आर स्पीकिंग और writing style is American, then you are allowed to use have. Both can be effective for you. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपनी लाइक, अपनी चाहत, अपनी वांट का इज़हार कर रहे हैं. ये वांट कहते हैं अपनी चाहत का. तो वहाँ पे आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ही विल, तो ये गलत है. अगर यहाँ पे भी आप लिखते हैं विल, so it will be considered a fault in English language. You are just allowed to use would like to. I would like to. एक और जुमला बना देता हूँ. You would like to come. आप मेरे साथ आना पसंद करोगे. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है? यहाँ पे भी हमने वुड का इस्तेमाल किया. आप विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. और यहाँ तीनों सेंसेस के अंदर ये आपकी क्या है? यू आर गोइंग टू यूज़ योर विश और वांट टू डू समथिंग, फॉर गेटिंग समथिंग, फॉर हैविंग समथिंग. सो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ your 6 points have been completed in this lecture regarding a new modal verb which is known as the name of would. So there are 3 or 4 or 6 points which are still remaining, and you would be learned about them in upcoming lectures. So dear student,
मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी लेक्चर, ऑल द लेक्चर विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय यू, विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय मी टुवर्ड्स यू, you would have understood, and you will pay focus and attention to this online classes system. Take care of yourself. See you next time. Bye. Allah Hafiz.